Hi. Today we are going to cover the graph terminologies, whatever we have gone through till now. In this video, we will see in throughout the talk of graph data structure what we covered, what kind of properties we were having, which kind of terminologies we discussed, what are the different application areas where we can use the graph data structure, what was the different algorithms that we tried to deploy using the graph data structures. And here in this video also I'll give you the few new real world application areas as well as new algorithms. I'll give you the name of these new algorithms. These are based on the graph data structure and they are solving the real world problems. Okay, so let's go through with the basic things whatever we have seen in graph, so basic properties and terminologies. So the first basic terminology that we used in graph data structure was graph data structure use the node and edges. Node means any data which you store in graph that you store normally in nodes. And if a particular data is connected with the other data, then we connect them with the edges. Basically graph is a hierarchical data structure, okay, and we can say that it's a non-linear data structure. So if means data is non-linear, I would like to show that a particular data is connected with the other data, they have some common properties, they have links somehow. So we use the normally graph data structure where we have the node, in that node we store the data, and if two nodes are connected with each other, so we connect them by using the edges. Another terminology that we have gone through, that is the path. Path is what? Node A to node B walked through edges. If there is a two node in given graph, multiple nodes can be there. I'm talking about specifically any two nodes. If there is a path or link in between two nodes from A to B, you have one link over there, one edge over there. We can say that this is a path in between A to B. Or somehow if it is not direct, it may be possible it is not the direct link in between A and B, but it may be possible via means routing from some other nodes we are able to reach from A to B. So we can say that this is the complete path. It means whatever edges we are covering, that will come under the path. Now what is length? Length of the path is the number of edges for unweighted graph. तो जितनी एजेस होंगी, जैसा भी मैंने कहा, वही उस पाथ की लेंथ होगी। ये अनवेटेड ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर अब दूसरी जो हमने अगला जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी वो था वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ इज द एज ऑफ द ग्राफ इज असाइंड ए वेट, यानी किन्हीं दो नोड के बीच में अगर हम एक एज है, एक लिंक है जो इन दोनों नोड को कनेक्ट कर रही है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ इसको वैल्यू असाइन करते हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं, जस्ट लाइक 1 2 और एनीथिंग, we can say that this is the weight of this edge. And see, in some most of the terminology we call it as the edge length also. Now next is directed or undirected kind of graphs we have. Means this is a property, you can say that directed or undirected. Directed means what? If certain direction is given, and undirected means what? If direction is not given. So directed graph is if the edge can be traversed only in one direction. Let's suppose that this is a graph, and here we have the connection between three nodes. So what happening here? If we are here at that particular node, there is no direction mentioned here. So either we can go in that particular node, even though we can come back also. So there is no direction. That's why we can say that this is an undirected graph. But if suppose that I mention over here like that, or I mention over here like that, so I can go only from that node to this node only. But if you will say whether you can come back, no, you cannot come back because there is no direction from that node to the previous node. Next is connected graph versus unconnected graph. See, in graph what we have, we can have the nodes, we can have the links in between them. Suppose that this is a graph in which we have the three nodes or three vertices,
and these two nodes are connected with each other. Okay, but we do not have any edge in between this node and this node, or this node or this node. So what happening here, these two nodes are connected with each other, but this particular node is not connected with these two nodes. So what we can say that this is a unconnected graph. Means for every pair of vertices, if there is no path exists, then we can say that this is a unconnected graph. Or if for every pair of vertices we have the edges to connect them, we can say that this is a connected graph. Now come to the cyclic graph or no cycle graph. Cycle it means if we start from any vertex and we are able to reach in that particular vertex, then we can say that cycle is there. So let's suppose that we are here, we are going in this particular node, then we are coming in this particular node, then we are coming in this particular node, and we are coming back to this first node. So here what happening, you started from this position and once again you reached at the same position. So that's why cycle is present. But what about this? If suppose that I cross this particular line, so what happens if we start from here, we can reach in that node, we can reach at that node, and we can reach at that node. But afterwards, we do not have any other path through which we can we can reach up to the first node again. So we can say that this is a acyclic graph. Now, the important type of graph is bipartite graph. So here, if the node of the graph can be colored using two colors, so that there is no adjacent node with the same color. I think you have gone through in a discrete mathematics this graph coloring problem. So a special kind of graph we have, that is bipartite graph. Let's suppose that we have one graph like that, in which we have the four nodes, and this graph is connected in such a manner like that. Okay, and let's give the number to them. First number node, second number node, this is third number node, and this is fourth number node. Okay, graph coloring problem is what ki there should not be any node which have the same color, any adjacent node which have the same color. सो इट मीन्स अगर हम किसी ग्राफ को टू कलर प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। कलर प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी दो एडजेसेंट नोड का कलर सेम नहीं होना चाहिए, और हमें यहाँ पे मैक्सिमम दो ही कलर ले सकते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास में दो कलर है, एक कलर है सपोज दैट रेड, और दूसरा कलर है हमारे पास में सपोज दैट ब्लू। दो ही कलर हमारे पास में है। अब हमको इस ग्राफ को कलर इन सच अ वे करना है कि किसी भी दो एडजेसेंट नोड के कलर सेम नहीं होने चाहिए। तो पहले नोड को लेट सपोज दैट हमने रेड कलर से मार्क कर दिया। अब अगर पहले नोड को हमने रेड कलर से मार्क कर दिया, तो सेकंड नोड और फोर्थ नोड दोनों को हम रेड कलर से मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही पहले नोड के एडजेसेंट हैं। तो अगर हम इन दोनों को रेड कलर से मार्क नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अब इन दोनों को या हम एक ही हमारे पास में ऑप्शन है कि हम किससे कलर से मार्क कर सके, बी कलर से मार्क कर सके, ब्लू कलर से मार्क कर सके। अगर हमने सेकंड नंबर वाले नोड को ब्लू कलर से मार्क कर दिया है, तो डेफिनेटली फर्स्ट कलर को हम ब्लू कलर से मार्क नहीं कर सकते, और ठीक है फर्स्ट तो नोड हमारा ऑलरेडी रेड है, और थर्ड को भी हम ब्लू कलर से मार्क नहीं कर सकते। अगर हम थर्ड को भी ब्लू कलर से मार्क नहीं कर सकते, तो थर्ड को डेफिनेटली हम रेड कलर से मार्क करेंगे। लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा कि कहीं थर्ड हमारा वन से कनेक्टेड तो नहीं है, जिसका ऑलरेडी कलर रेड है। नहीं, अभी ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम थर्ड नोड को हम रेड कलर से मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से फिर हम आते हैं फोर पे। फोर पे अगर हम देखें तो इसके दो एडजेसेंट हैं, एक एडजेसेंट है वन, दूसरा एडजेसेंट है थ्री, दोनों के कलर रेड है। तो दैट्स वाई फोर के पास एक ही ऑप्शन है कि फोर्थ नोड को हम ब्लू कलर से मार्क कर सके। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को इस दिए गए ग्राफ के लिए हम टू कलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का जो ग्राफ है वो बाइपार्टाइट ग्राफ कहलाएगा। इसका दूसरा जो टेक्निकल डेफिनेशन वो है कि अगर दिए गए ग्राफ में जो नंबर ऑफ सेट्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, जैसे यहाँ पे कौन कौन से वर्टाइसेस हैं, 1 2 3 4, अगर हम दिए गए ग्राफ के वर्टाइसेस को इस तरीके से हम दो सेट में बांट सकें, हमको इनको क्या करना है, दो सेट में बांटना है। अगर हम दिए गए ग्राफ के वर्टाइसेस को दो सेट में बांट सके, यानी सेट 1 और सेट 2 में इस तरीके से बांट सके कि सेट 1 का हर एक एलिमेंट सेट 2 के एलिमेंट से कनेक्टेड हो, और इसी प्रकार से सेट 2 का हर एलिमेंट सेट 1 के एलिमेंट से कनेक्टेड हो, बट सेट 1 के कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, इसी प्रकार सेट 2 के कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इसको बांट सकते हैं 1 एंड 3 सेट 1 में रख दें,
और सेट 2 में हम 2 एंड 4 को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अगर ग्राफ कलरिंग के हिसाब से भी देखोगे तो सेट 1 इज कनेक्टेड विद द सॉरी 1 vertex is connected with the 1 and 2, and similarly 3 is connected with the 2 and 4, but 1 is not connected with 3, and similarly 2 is also not connected with 4. So here we are able to divide the vertices into different sets, in which each element have the unique image, or sorry, or connection with the elements of the set 2. तो इस प्रकार का ग्राफ बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट कमिंग इनटू द डिग्री। डिग्री ऑफ अ नोड इज अ नंबर ऑफ इट्स नेबर्स। किसी पर्टिकुलर नोड के कितने नेबर हैं वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो जैसे अगर हम इस 1 नंबर नोड के देखें तो इसके नेबर्स 2 हैं, तो इसकी डिग्री हो गई 2। उसी प्रकार से 2 की भी डिग्री 2 है। इस ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ भी सबकी 2 है। इस ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ भी सबकी 2 है। इस ग्राफ में देखते हैं तो इसका नेबर 1 है, इसका भी नेबर 1 है, दैट्स व्हाई इनकी डिग्री 1 है। गॉट इट। अब ये तो हुआ अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात, लेकिन अगर यही डायरेक्टेड ग्राफ होता तो डिग्री क्या होती है? डिग्री दो चीजों में बढ़ सकती है, एक तो हो जाती है इन डिग्री और दूसरी हो जाती है आउट डिग्री। डायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री और आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इसको मैं पहला नोड कहूँ और इसका दूसरा नोड कहूँ, तो इस पर्टिकुलर नोड की यानी नोड नंबर 1 की दो डिग्रियां होगी, एक इन डिग्री होगी, एक आउट डिग्री होगी। इन डिग्री इट मीन्स कितनी नंबर ऑफ एजेस इस पे इंसिडेंट हो रही हैं, और आउट डिग्री का मीन है कि कितनी नंबर ऑफ एजेस जिससे आउटसाइड जा रही हैं। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो इसमें एक भी एज इंसिडेंट नहीं हो रही है, तो इसकी इन डिग्री 0 होगी, लेकिन इससे एक एज आउटसाइड जा रही है इसलिए इसकी आउट डिग्री 1 होगी। इसी प्रकार से 2 की बात करें तो इसकी इन डिग्री तो 1 है लेकिन आउट डिग्री 0 है। Okay, so these are the basic properties and terminologies that we have covered in the graph data structure. And now let's see the few basic kind of graphs, and we have to be aware with this graph. Sometimes क्या होता है, हम जब कभी लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें ग्राफ के नेम तो बता दिए जाते हैं किस तरीके का ग्राफ है, लेकिन हमारे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन, एक पिक्चर क्रिएट नहीं होती है कि ये ग्राफ किस तरीके का होगा या उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कई बार डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, स्पार्स, डेंस, टोपोलॉजिकल, लेबल्ड, है ना, इस तरीके के ग्राफ की बात करते हैं। तो ये ग्राफ होते क्या है एक्चुअल में, तो इन सारे ग्राफ को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में ग्राफ आता है वो आता है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड ग्राफ कैसे ग्राफ को कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन मेंशन की गई हो। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो कि जो एजेस हैं उसमें एरो का सिंबल बना हुआ है, और ये एरो जो है वो आपको डायरेक्शन शो कर रही है कि किस डायरेक्शन में आप मूव आउट कर सकते हो। और अनडायरेक्टेड ग्राफ में किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वी कैन से दैट कि डायरेक्टेड ग्राफ इज अ यूनिडायरेक्शनल ग्राफ, एंड जो इनकी एजेस होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, और जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में एजेस बाई डायरेक्शनल होती हैं। यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल का मीन ऐसा है कि जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों जा सके वो बाई डायरेक्शनल, और जो केवल वन सिंगल डायरेक्शन में आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सके वो यूनिडायरेक्शनल होगी। देन आते हैं जो दूसरे टाइप का ग्राफ है वो है वेटेड और अनवेटेड ग्राफ। सो डेफिनेटली अगर हम एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करने वाली एज के ऊपर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिख देते हैं तो वो उसका वेट कहलाता है। ये वेट को हम इस तरीके से कह सकते हैं पाथ लेंथ, कि एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए जो पाथ है, जो रास्ता है, जो एज है, जो लिंक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी टाइम कितना है। सो इस प्रकार का ग्राफ हमारा वेटेड ग्राफ कहलाता है, और जिसमें कोई भी वेट मेंशन ना किए जाए उसको अनवेटेड ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है सिंपल और नॉन सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ यानी सिंपल, एक नोड से दूसरे नोड पे एक कनेक्शन हो, दूसरे से तीसरे पे कनेक्शन हो, इसी तरीके से एक सिंपल कनेक्शन अगर सारे नोड्स के बीच में है, कनेक्टेड ग्राफ है आपस में, उसको हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। बट नॉन सिंपल ग्राफ यानी कि अगर किन्हीं दो एजेस के, दो वर्टाइसेस के बीच में मल्टीपल एजेस एग्जिस्ट करती हों, सेल्फ लूप एग्जिस्ट करते हों, तो इस प्रकार का ग्राफ हमारा नॉन सिंपल ग्राफ कहलाता है। स्पार्स और डेंस आप देख के ही समझ सकते हैं, काफी डेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सिंपल है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड सा है। तो स्पार्स ग्राफ में जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस होती हैं, जो उसके जो ग्राफ में जो नोड्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक नंबर्स होते हैं। एंड अगर डेंस की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जो नोड्स होंगे वो लीनियर नंबर्स होंगे। गॉट इट। सो इस प्रकार अपन दो टाइप के ग्राफ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन साइक्लिक, एसाइक्लिक, अभी जैसे बात की हमने कि साइक्लिक ग्राफ ऐसे ग्राफ को कहते हैं जहां पे अगर हम किसी नोड से स्टार्ट करें और वापस उसी नोड पे अगर हम पहुंच जा रहे हैं तो उसको साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। और अगर देयर इज नो साइकिल प्रेजेंट इन द ग्राफ, इट मींस लूपिंग कंडीशन नहीं क्रिएट होती है, तो वो एसाइक्लिक ग्राफ है।
नेक्स्ट है एम्बेडेड एंड टोपोलॉजिकल। नॉर्मल जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो एम्बेडेड ग्राफ होते हैं, नॉर्मल लिंक्स होते हैं, नॉर्मल एजेस होती हैं उनके बीच में। मतलब इट मींस जियोमेट्रिक लोकेशंस पे हर एक नोड अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर टोपोलॉजिकल ग्राफ की बात करें तो ये किसी स्पेसिफिक टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग जनरेट किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्रिड कनेक्शन है, पावर लाइन के ग्रिड कनेक्शन का हमें एक डिजाइन करनी है कि कैसे ग्रिड्स आपस में कनेक्टेड होंगी। या फिर अगर हम बात करें ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये एक स्पेसिफिक टोपोलॉजी बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें मल्टीपल सिटीज हैं, वो सारी सिटीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक सेल्समैन है जिनको सारी सिटीज में जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, इन सच अ वे सेल करना है कि डिस्टेंस कम से कम कवर हो। तो वो भी एक टोपोलॉजी। तो इस पे बेस्ड जो हमारा आर्किटेक्चर होता है, जो ग्राफ होता है, उसको हम टोपोलॉजिकल ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट आती है बात एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की बात करते हैं। एक्सप्लिसिट ग्राफ इट मींस नॉर्मली आप आर्किटेक्चर देख रहे हो, बेसिकली इम्प्लिसिट की अगर हम बात करें कि अगर देखा जाए तो हर जो एक दिए गए ग्राफ में अगर हर एक नोड अपने आप में एक फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप में एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस प्रकार का ग्राफ को हम इम्प्लिसिट ग्राफ कहते हैं। और जहां पे हम एक्सप्लिसिट ग्राफ नॉर्मली क्या है कि एक नोड से स्टार्ट किया, फिर नोड को विजिट करते हुए, मतलब इट मींस देयर इज नो एनी काइंड ऑफ स्टेट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि पहले नोड भी अपने आप में एक सोल्यूशन है तो दूसरा भी हो सकता है वो एक स्टेट है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इम्प्लिसिट ग्राफ, अच्छा इसको अपन ट्विटर के ट्वीट से समझते हैं कि नॉर्मली क्या होता था कि पहले एक व्यक्ति ने ट्विटर में ट्वीट कर दिया, उसको दूसरे व्यक्ति को उसको कोई लेना देना नहीं था। इट मींस वो जब स्टार्टिंग में ट्विटर आया था, लेकिन बाद में ट्विटर में क्या हुआ कि जैसे जैसे लोग जब फॉलो करने का कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा, तो जब जो एक व्यक्ति कोई ट्वीट करता तो दूसरा व्यक्ति उसको रीट्वीट कर सकता है, जबकि पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसको ये समझें कि जब पहले रीट्वीट पॉसिबल नहीं था तो वो एक्सप्लिसिट ग्राफ था एक्चुअल में। और बाद में जब वो रीट्वीटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, इट मींस एक ने ट्वीट किया, दूसरे ने उसको फॉलो किया, उसने इसको रीट्वीट किया, इस तरीके से हर एक नोड अपने आप में एक ट्वीट को होल्ड किया हुआ है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन उसको इम्प्लिसिट ग्राफ हम कहते हैं। लेबल्ड और अनलेबल्ड, इसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है कि जब आप फ्रेंडशिप रिलेशन ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो। फ्रेंडशिप रिलेशन क्या, जैसे फेसबुक में आप कनेक्टेड हो, 500 हजार फ्रेंड्स आपस में कनेक्टेड हो, अगर आप लोगों की कनेक्शंस का अगर एक ग्राफ हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हर एक नोड इंडिविजुअली किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वहां पे इस प्रकार का ग्राफ जहां पे हर नोड का कुछ ना कुछ नेम होता है उसको हम लेबल्ड ग्राफ कहते हैं। और जहां नॉर्मली हम जैसा पढ़ते हैं कि जब हमने कोई लेबल नहीं मेंशन किया हुआ है तो अनलेबल्ड ग्राफ वो होता है। सो ये कुछ ऐसे बेसिक ग्राफ्स हैं जिनकी नेम आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब भी कोई आपसे बोले कि टोपोलॉजिकल ग्राफ की बात की जा रही है, इम्प्लिसिट ग्राफ की बात की जा रही है, we are talking about the acyclic graph or it is a weighted graph or undirected graph, something like that, then you have to you should have a picture in your mind what kind of graph we are talking about. Okay.